حیا کی حفاظت اور غیبی مدد۔ حضرت سارہ علیہ السلام کی داستان۔ یہ واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم اہلیہ حضرت سارہ علیہ السلام کا اور اس ظالم بادشاہ کا جس کا نام نمرود تھا۔ کچھ روایتوں کے مطابق یہ مصر کا ایک جابر حاکم تھا۔ سفر کی شروعات۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی مقدس اہلیہ حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ سفر پر نکلے۔ یہ محض راستوں کا سفر نہیں تھا بلکہ روحانی آزمائش کی طرف بڑھتا ہوا ایک قدم تھا۔ راستے میں آپ ایک ایسے علاقے میں پہنچے جہاں ایک نہایت مغرور اور ظالم بادشاہ کی حکومت تھی۔ خطرے کی خبر۔ اس علاقے کے لوگوں نے جب حضرت سارہ علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی روحانی پاکیزگی اور خوبصورتی سے دنگ رہ گئے۔ انہوں نے بادشاہ کو جا کر خبر دی، یہاں ایک ایسی بے مثال عورت آئی ہے جس کی کوئی دوسری مثال نہیں۔ یہ سنتے ہی اس بدبخت کے دل میں برا خیال آ گیا۔ حکمت بھرا فیصلہ۔ جب یہ خبر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچی تو آپ نے حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ایک حکمت اپنائی۔ آپ نے حضرت سارہ علیہ السلام سے فرمایا، اگر کوئی پوچھے تو کہنا کہ تم میری بہن ہو۔ یہ کوئی جھوٹ نہیں تھا کیونکہ دین اور ایمان کے رشتے سے وہ آپ کی بہن تھی۔ یہ فیصلہ جان اور عزت کی حفاظت کے لیے ایک تدبیر تھی۔ محل میں بلاوا۔ بادشاہ کے سپاہی آئے اور حضرت سارہ علیہ السلام کو محل لے گئے۔ وہاں کوئی انسانی سہارا نہ تھا، نہ کوئی مددگار، لیکن ان کے دل میں ایک چٹان جیسا یقین تھا کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ دعا سب سے بڑی طاقت۔ جیسے ہی وہ محل میں داخل ہوئیں، انہوں نے اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر التجا کی، اے میرے اللہ، میں نے ہمیشہ اپنی عزت اور پاکیزگی کو تیری رضا کے لیے بچایا ہے، آج تو ہی میری حفاظت فرما۔ پہلی بار اللہ کی پکڑ۔ بادشاہ نے جیسے ہی بری نیت سے حضرت سارہ علیہ السلام کو چھونے کی کوشش کی، اچانک اللہ کی قدرت حرکت میں آئی۔ اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے بعد بھی نمرود کا دل نہیں بدلا۔ حضرت سارہ علیہ السلام والا واقعہ۔ اسی سرکشی کے دوران جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ اس علاقے سے گزرے تو نمرود کی بدنیتی پھر جاگ اٹھی۔ اسے نہ اللہ کا خوف تھا اور نہ ہی ایک نبی کا لحاظ۔ اس نے انہیں محل میں بلوا لیا۔ اللہ کی پکڑ۔ لیکن نمرود یہ بھول گیا تھا کہ عرش والا سب دیکھ رہا ہے۔ جیسے ہی اس نے ہاتھ بڑھایا، اس کا پورا جسم بے جان ہو گیا۔ اس کی آواز گلے میں اٹک گئی۔ وہ جو خود کو خدا کہتا تھا اپنی ذلت پر آ گیا۔ اس نے سمجھ لیا کہ حضرت سارہ علیہ السلام کوئی عام عورت نہیں ہے بلکہ ان کا رب ان کی ڈھال بن کر کھڑا ہے۔ روحانی حقیقت۔ نمرود کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ طاقت ہمیشہ نہیں رہتی۔ حکومت اور دولت اللہ کی امانت ہے، گھمنڈ کا ذریعہ نہیں۔ اللہ کی پکڑ۔ جب ظالم حد پار کرتا ہے تو اللہ کی پکڑ اسے ایک پل میں زمیندوز کر دیتی ہے۔ حق کی جیت۔ چاہے سامنے نمرود جیسا طاقتور ظالم ہی کیوں نہ ہو، اگر دل میں اللہ کا یقین ہے تو جیت ہمیشہ مومن کی ہوتی ہے۔ آخری پیغام۔ نمرود ہر اس انسان کے لیے ایک سبق ہے جو اپنی طاقت پر اتراتا ہے۔ یاد رکھو، جب خدا کا قانون حرکت میں آتا ہے تو بڑے سے بڑے بادشاہ کی سلطنت بھی ایک مچھر یا ایک بیزان جسم کے سامنے ڈھیر ہو جاتی ہے۔ نمرود، ایک جابر کی داستان اور خدائی کا جھوٹا دعویٰ۔ جب ہم اس عظیم واقعے کو سنتے ہیں تو دل میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر وہ کون تھا جس نے ایک پاک دامن خاتون کی حیا پر حملہ کرنے کی جرت کی؟ وہ تھا نمرود، ایک ایسا نام جو تاریخ میں ظلم، گھمنڈ اور خدائی کے جھوٹے دعوے کی پہچان بن گیا۔ طاقت کا نشہ اور تکبر۔ نمرود کے پاس دولت، فوج اور وسیع حکومت تھی، لیکن اس کے دل میں تکبر، اہنکار کی ایک گہری بیماری تھی۔ اس کا گھمنڈ اتنا بڑھ گیا کہ اس نے نعوذ باللہ خود کو خدا کہلانا شروع کر دیا۔ وہ کہتا تھا، میں زندگی دیتا ہوں اور میں ہی موت دیتا ہوں۔ لوگ خوف کے مارے اس کی بات مانتے تھے، مگر سچ تو یہ تھا کہ وہ اپنی طاقت کے نشے میں اندھا ایک بے حد کمزور انسان تھا۔ ظلم کی انتہا۔ نمرود کی حکومت میں نہ انصاف تھا نہ رحم۔ اس کی سب سے خوفناک عادت یہ تھی کہ اگر اسے کسی کی بیوی پسند آ جاتی تو وہ زبردستی اسے اپنے محل میں طلب کر لیتا۔ اس کے لیے پاک دامنی اور پوتر رشتوں کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ٹکراؤ۔ اسی نمرود کا سامنا ہوا جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو مردے کو زندہ کرتا ہے اور زندگی کو موت دیتا ہے، تو نمرود نے ضد میں 2 قیدیوں کو بلوایا، ایک کو مار دیا اور ایک کو چھوڑ دیا، اور کہنے لگا کہ یہ کام میں بھی کر سکتا ہوں۔ وہ سوال جس نے ظالم کو لاجواب کر دیا۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسی بات کہی جس نے نمرود کے ہوش اڑا دیے۔ بے شک میرا اللہ سورج کو مشرق ایسٹ سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو اسے مغرب ویسٹ سے نکال کر دکھا۔ نمرود کے پاس کوئی جواب نہ تھا، وہ پوری طرح خاموش اور شرمندہ ہو گیا۔ آگ کا امتحان۔ جب گھمنڈ ٹوٹتا ہے تو ظالم اکثر اور زیادہ سرکش ہو جاتا ہے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دہکتی ہوئی آگ میں پھینکنے کا حکم دیا۔
लेकिन अल्लाह के हुक्म से वो आग सलामती वाली ठंडी गुलजार बन गई। अल्लाह की पकड़ और रहमत। जब नमरूद का घमंड खाक हुआ, महल के उस कमरे में अब एक अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था। जहाँ कुछ ही लम्हे पहले एक जालिम की अना घमंड गूंजती थी, अब वहाँ सिर्फ खौफ और अल्लाह की किब्रियाई का एहसास था। एक तरफ थी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पाक दामन अहलिया हजरत सारा अलैहिस्सलाम, जिनका दिल अपने रब पर मुकम्मल यकीन से लबरेज था, और दूसरी तरफ था वो बादशाह जो खुद को खुदा कहता था, लेकिन इस वक्त जमीन पर गिरा हुआ एक बेबस और लाचार इंसान बना हुआ था नमरूद। जालिम की बेबसी, उसका जिस्म दूसरी बार अल्लाह के अजाब की गिरफ्त में था। वो हाथ जो ताकत का निशान थे बेजान पड़े थे, वो आवाज जो हुक्म देती थी अब कांप रही थी। नमरूद की आंखों में मौत का डर साफ दिख रहा था। वो समझ चुका था कि ये किसी इंसान की नहीं बल्कि उस रब्बे जुल जलाल की पकड़ है जिसे वो झुठलाता रहा था। माफी की सच्ची पुकार। इस बार नमरूद के लहजे में तकब्बुर का एक कतरा भी न था। वो गिड़गिड़ाकर बोला, मुझे माफ कर दो, तुम्हारा रब सच्चा है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे इस अजाब से आजाद करा दो, मैं फिर कभी तुम्हारी तरफ बुरी नजर नहीं डालूंगा। हजरत सारा अलैहिस्सलाम का रहम। हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने उसकी जिल्लत को देखा। वो चाहती तो उसे उसी हाल पर छोड़ सकती थी, लेकिन एक मोमिन का दिल नफरत से नहीं रहम से भरा होता है। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और निहायत आजिज़ी से अपने परवरदिगार के हुजूर दुआ की, ऐ मेरे रब, तू बड़ा रहम करने वाला है, अगर ये शख्स सच्चे दिल से तौबा कर रहा है तो इसे माफ फरमा दे और मुझे इस आजमाइश से नजात अता फरमा। मौजिज़ा दुआ की कबूलियत। वो दुआ जो दिल की गहराई से निकली थी सीधे अर्श तक पहुंची। जैसे ही दुआ मुकम्मल हुई, नमरूद के जिस्म की जकड़न खत्म होने लगी, उसकी उंगलियां हिलने लगीं और सांसें बहाल हो गईं। कुछ ही लम्हों में वो पूरी तरह आजाद हो गया। नई जिंदगी का एहसास। नमरूद जमीन पर गिर पड़ा, जैसे उसे मौत के मुंह से वापस जिंदगी मिली हो। उसे समझ आ गया था कि ये किसी इंसान का कमाल नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रहमत है। अब उसके दिल में घमंड की जगह सिर्फ और सिर्फ खौफ खुदा था। इज्जत के साथ रुखसती। नमरूद ने कांपती आवाज में माफी मांगी और अपने दरबारियों को हुक्म दिया, इन्हें पूरी इज्जत और एहतराम के साथ यहाँ से रुखसत करो। शर्मिंदगी और पछतावे में उसने एक पाक सीरत खातून को तोहफे के तौर पर पेश किया, जिनका नाम था हजरत हाजरा रजी। वही हजरत हाजरा रजी जो आगे चलकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अजीम फर्जंद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा बनी। रूहानी सबक। ये वाक़या हमें सिखाता है, 1. अल्लाह की रहमत। खुदा की रहमत उसके गजब गुस्से पर भारी है, वो तौबा करने वाले को मौका जरूर देता है। 2. दुआ की ताकत। जब रास्ता बंद नजर आए तो अल्लाह के हुजूर की गई एक सच्ची दुआ नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। 3. सच्चा मोमिन। मोमिन वो है जो ताकत होने के बावजूद जालिम पर रहम करना जानता हो। आखिरी पैगाम। अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम चारों तरफ से मुश्किलों में घिर गए हो तो याद रखना, एक रास्ता हमेशा खुला रहता है और वो है अल्लाह की रहमत का रास्ता। एक रूहानी पैगाम। जहाँ दिल थक जाता है, आंखें नम हो जाती हैं और इंसान ये सोचने लगता है कि अब क्या होगा, लेकिन यही वो लम्हा होता है जहाँ एक सच्चा मोमिन अपने रब की तरफ देखता है और कहता है, मुझे नहीं पता कैसे होगा लेकिन मुझे यकीन है कि तू है। यकीन जो सब कुछ बदल देता है। हजरत सारा अलैहिस्सलाम के इस वाक़ये में सबसे बड़ी ताकत क्या थी? न कोई तलवार, न कोई फौज और न ही कोई दुनियावी सहारा। उनके पास सिर्फ एक चीज थी, अल्लाह पर कामिल यकीन। वो तन्हा थी, सामने नमरूद जैसा जालिम बादशाह था, मगर उनके दिल में डर का गुजर न था, क्योंकि उन्हें पता था कि मेरा रब मेरे साथ है। मुसीबत एक इलाही इम्तिहान। हम अक्सर मुसीबत को सजा समझ लेते हैं, लेकिन हर मुसीबत सजा नहीं होती। कभी कभी ये एक इम्तिहान होती है, ये देखने के लिए कि हमारा यकीन कितना मजबूत है। हजरत सारा अलैहिस्सलाम का वो लम्हा भी एक अजीम इम्तिहान था और उन्होंने उस इम्तिहान को सब्र और दुआ से फतह किया। दुआ जो अर्श को हिला देती है। दुआ वो ताकत है जो बंद दरवाजे खोल सकती है। हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने किसी इंसान को नहीं पुकारा बल्कि सिर्फ अपने खालिक को पुकारा। और देखिए, एक जालिम बादशाह बेबस हो गया, उसकी तमाम ताकत मिट्टी में मिल गई और अल्लाह ने अपनी वली को निहायत इज्जत के साथ महफूज निकाल लिया। जुल्म का अंजाम। इस दुनिया में कोई जालिम हमेशा हुकूमत नहीं करता। नमरूद जैसा बादशाह जो खुद को नाउजुबिल्लाह खुदा कहता था, वही एक पाक दामन औरत के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। ये हमें सिखाता है कि जुल्म की उम्र बहुत छोटी होती है। इज्जत अल्लाह की अमानत। हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने अपने दामन को हमेशा पाक रखा और जब वक्त आया तो अल्लाह ने खुद उनकी हिफाजत की। जो इंसान अपनी इज्जत की हिफाजत करता है, रब्बे जुल जलाल उसकी इज्जत का रखवाला खुद बन जाता है। सब्र कामयाबी की पहली सीढ़ी। मुसीबत में घबराना आसान है, लेकिन सब्र करना ही सबसे बड़ा हथियार है। हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने घबराहट नहीं दिखाई,
शिकायत नहीं की, बल्कि सब्र और दुआ का दामन थामे रखा। आज के लिए एक सबक, आज हम भी अपनी जिंदगी में छोटी बड़ी परेशानियों से गुजरते हैं, कभी रिश्तों की उलझन, कभी दिल का दर्द, लेकिन इस वाक़ये से हमें एक बात सीखनी चाहिए, हालात चाहे जैसे भी हों, अल्लाह की रहमत से उम्मीद मत छोड़ो। पाक रिश्ता अपने परवरदिगार से, सबसे खूबसूरत रिश्ता वो है जो आपके और आपके रब के बीच है। इसमें कोई दूरी नहीं, कोई रुकावट नहीं। जब आप सच्चे दिल से उसे पुकारते हैं तो वो अर्श से आपकी पुकार सुनता है। आखिरी एहसास, अगर आज आप परेशान हैं तो एक बात याद रखें, आप अकेले नहीं हैं, आपका रब आपके साथ है। जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, तो एक दरवाजा हमेशा खुला होता है, अल्लाह का दरवाजा। जब सब साथ छोड़ दें तो एक साथ हमेशा रहता है, अल्लाह का साथ। जब कोई समझ ना पाए तो एक है जो सब समझता है, अल्लाह। तो टूटना मत, हारना मत, क्योंकि जिसका सहारा अल्लाह हो उसे गिराने वाली कायनात में कोई ताकत नहीं है। उसका हाथ हवा में ही पत्थर की तरह जम गया और पूरा जिस्म बेजान हो गया। वो खौफ से कांप उठा और माफी मांगने लगा। हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने दुआ की और वो ठीक हो गया। दोबारा आजमाइश और जिल्लत, मगर मगरूर इंसान जल्दी सबक नहीं सीखता। उसने फिर जुर्रत की और इस बार अल्लाह का अजाब और भी सख्त था। वो पूरी तरह बेबस हो गया। अब उसे यकीन हो गया कि ये कोई आम औरत नहीं बल्कि अल्लाह की वली है। उसने कांपते हुए माफी मांगी। इज्जत के साथ वापसी, बादशाह ने निहायत अदब के साथ उन्हें रुखसत किया और डर के मारे एक तोहफा भी पेश किया, हजरत हाजरा रजी, जो बाद में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा बनी। रूहानी सबक, ये वाक़या हमें सिखाता है, अल्लाह की हिफाजत, जो अल्लाह के हो जाते हैं, अल्लाह उनकी इज्जत का रखवाला खुद बन जाता है। पाकीज़ा दामन, एक मोमिन औरत की पाकीज़गी उसकी सबसे बड़ी ताकत है। दुआ की कुदरत, दुआ एक जालिम बादशाह को भी बेबस बना सकती है। आखिरी पैगाम, जिसका सहारा परवरदिगार हो उसे दुनिया का कोई भी जालिम नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर तुम्हारा यकीन मजबूत है तो अल्लाह की मदद हर कदम पर तुम्हारे साथ है। जुल्म का जवाल और इंसाफ इलाही, एक कड़वी हकीकत। इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाइयों में से एक सच्चाई ये है कि जुल्म कभी हमेशा नहीं रहता और जालिम कभी हमेशा ताकतवर नहीं रहता। आज चाहे किसी के पास ताकत हो, दौलत हो या हुकूमत, लेकिन अगर वो इनका इस्तेमाल दूसरों को दबाने या उनकी इज्जत छीनने में करता है तो ये ताकत उसकी जीत नहीं बल्कि उसकी तबाही की शुरुआत है। जुल्म की असलियत, जुल्म सिर्फ किसी को शारीरिक तकलीफ देना नहीं है, किसी का हक मार लेना, किसी की पाक दामनी पर कीचड़ उछालना, कमजोर को दबाना और सच का गला घोटना भी जुल्म है। इंसान सोचता है कि वो छोटा सा फायदा उठा रहा है, लेकिन वो भूल जाता है कि अल्लाह के यहाँ हर जर्रे का हिसाब होना है। जालिम का तकब्बुर, जालिम इंसान अक्सर एक ही गलती करता है, उसे लगता है कि उसकी ताकत लाजवाल है। यही घमंड उसे अंधा कर देता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर का नमरूद हो या कोई और जाबिर, सबने खुद को खुदा समझा, मगर वक्त ने साबित किया कि वे मिट्टी से ज्यादा कुछ न थे। मोहलत, एक ढील। अक्सर लोग पूछते हैं कि जालिम को फौरन सजा क्यों नहीं मिलती। हकीकत ये है कि अल्लाह मोहलत देता है ताकि इंसान संभल जाए और तौबा कर ले, लेकिन जब जुल्म अपनी हदें पार कर जाता है तो फिर अल्लाह की पकड़ आती है, और जब वो पकड़ आती है तो दुनिया की कोई फौज उसे बचा नहीं सकती। तारीख की गवाही, तारीख गवाह है कि बड़े बड़े बादशाह और ताकतवर सल्तनतें खाक में मिल गईं। नमरूद, फिरौन और हमान जैसे जालिम आज सिर्फ इबरत सबक की मिसाल बनकर रह गए हैं। उनका घमंड टूटा और उनकी सल्तनतें बिखर गईं। मजलूम की दुआ, अर्श का कंपन। इस दुनिया में सबसे ताकतवर चीज न तलवार है और न दौलत, बल्कि मजलूम की आह और उसकी दुआ है। जब एक बेबस इंसान, जैसे हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने उस महल में की थी, दिल से फरियाद करता है तो वो दुआ सीधे आसमानों को चीरकर अल्लाह तक पहुंचती है, और अल्लाह का वादा है कि वो मजलूम की मदद जरूर करेगा। इंसाफ, रब्बे जुल जलाल का वादा। इस दुनिया की अदालत में भले ही इंसाफ अधूरा रह जाए, लेकिन अल्लाह की अदालत में हर आंसू का हिसाब होगा और हर दर्द का जवाब मिलेगा। वहाँ कोई सिफारिश और कोई दौलत काम नहीं आएगी। अपने लिए एक आईना। ये वाक़या और ये दास्तान हमारे लिए एक आईना है। हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या हम जाने अनजाने में किसी का दिल तो नहीं दुखा रहे? क्या हम किसी का हक तो नहीं मार रहे? कामयाबी का रास्ता, हमेशा इंसाफ का साथ दें, कमजोरों की ढाल बने। अगर किसी का दिल दुखाया हो तो फौरन माफी मांगे और तौबा करें। आखिरी पैगाम, जिंदगी बहुत मुख्तसर, छोटी है। ताकत, दौलत और शोहरत सब यहीं रह जाएगी। हमारे साथ सिर्फ हमारे आमाल, हमारा किरदार और हमारा इंसाफ जाएगा। दिल में बस जाने वाली एक बात, जालिम चाहे जितना भी कद्दावर और ताकतवर क्यों ना हो, एक मजलूम की सच्ची दुआ उसकी सारी हुकूमत को मिट्टी में मिला देने के लिए काफी है।
इम्तिहान ईमान, जब जुल्म पर हया की जीत हुई। ये उस दौर की दास्तान है जो तारीख का एक रोशन बाब बन गई, जब जमीन पर जुल्म अपनी हदें पार कर चुका था और बादशाह खुद को नाउजुबिल्लाह खुदा समझने लगे थे। उस दौर में हक की आवाज बुलंद करना अपनी जान दांव पर लगाने जैसा था। तब एक अजीम हस्ती खड़ी हुई जिन्होंने ऐलान किया, मेरा रब सिर्फ अल्लाह है। वो थे जद्दुल अंबिया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। उनके साथ थी सब्र, ईसार और पाकीज़गी की मिसाल हजरत सारा अलैहिस्सलाम। जालिम का सामना। उस दौर का बादशाह नमरूद, जो निहायत जाबिर और मगरूर था, अपनी ताकत के नशे में चूर लोगों की इज्जत और ईमान से खेलना अपना हक समझता था। उसकी बुरी नजरें पाकीज़ा दामन वाली खवातीन को भी नहीं बख्शती थी। सफर और आजमाइश। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी अहलिया पत्नी के साथ सफर करते हुए नमरूद की रियासत से गुजरे, तो बादशाह के प्यादों ने हजरत सारा अलैहिस्सलाम की नूरानी शख्सियत और पाकीज़गी का जिक्र बादशाह से किया। नमरूद की नीयत बिगड़ गई और उसने उन्हें अपने महल में तलब कर लिया। तन्हाई में अल्लाह का साथ। महल के उस कमरे में जहां हजरत सारा अलैहिस्सलाम तन्हा थी, कोई इंसानी सहारा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उनके दिल में यकीन का पहाड़ था कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है। दुआ मोमिन का हथियार। जैसे ही उस बदबख्त जालिम ने अपनी नापाक नजर डाली और उनकी तरफ बढ़ने की कोशिश की, हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने अपने रब के हुजूर इल्तिजा की, ऐ मेरे परवरदिगार, अगर मैंने अपनी पाकीज़गी की हिफाजत सिर्फ तेरी रजा के लिए की है, तो आज इस जालिम के हाथ मुझ तक न पहुंचने दे। कुदरत का करिश्मा। दुआ का मुकम्मल होना था कि बादशाह का जिस्म सुन हो गया। उसके हाथ पांव पत्थर की तरह जाम हो गए। वो बेबस होकर तड़पने लगा। जब उसने माफी मांगी तो हजरत सारा अलैहिस्सलाम की दुआ से वो ठीक हुआ, मगर उसकी फितरत न बदली। उसने फिर हमला करना चाहा और इस बार अल्लाह का अजाब और भी सख्त था। हक की फतह। नमरूद खौफ से कांप उठा। उसने समझ लिया कि ये कोई मामूली औरत नहीं, बल्कि इनके साथ गैबी ताकत है। उसने हार मान ली और निहायत अदब के साथ उन्हें रुखसत किया। इसी मौके पर उसने तोहफे के तौर पर हजरत हाजरा रजी को उनकी खिदमत में पेश किया, जो बाद में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा बनी। रूहानी पैगाम। ये वाक़या हमें 3 बड़े सबक देता है। 1. तवक्कुल, भरोसा। जब बंदा सब कुछ अल्लाह पर छोड़ देता है तो कायनात की कोई ताकत उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। 2. पाकीज़गी की ताकत। हया और पाकीज़गी सिर्फ सिफत नहीं, बल्कि एक मोमिन की ढाल है। 3. जुल्म का अंजाम। जालिम चाहे जितना भी कद्दावर क्यों ना हो, खुदा की पकड़ बहुत सख्त होती है। ईमान की ढाल और जुल्म का जवाल। एक अजीम दास्तान। महल की वो खामोश दीवारें जो अभी कुछ ही लम्हे पहले तक एक जालिम की ताकत की गवाह थी, अब अल्लाह की कुदरत का हैरत अंगेज मंजर बन चुकी थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पाक दामन अहलिया पत्नी हजरत सारा अलैहिस्सलाम अल्लाह पर कामिल यकीन रखे सर झुकाए खड़ी थी, और सामने था घमंड में डूबा हुआ बादशाह नमरूद, जिसके हाथ अभी अभी अल्लाह के हुक्म से पत्थर की तरह सुन्न हो गए थे। पहली सजा। जालिम की बेबसी। जब पहली बार नमरूद ने बुरी नीयत से हाथ बढ़ाया तो उसी वक्त अल्लाह ने उसकी ताकत छीन ली। उसके हाथ हवा में ही रुक गए, उंगलियां बेजान हो गईं और पैर डगमगा गए। वो जो खुद को नाउजुबिल्लाह खुदा कहता था, आज एक बेबस इंसान की तरह कांप रहा था। उसने गिड़गिड़ाकर कहा, तारांकन, मुझे छोड़ दो, मुझे ठीक कर दो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। हजरत सारा अलैहिस्सलाम का दिल रहम से भर गया। उन्होंने अपने परवरदिगार से दुआ की और अल्लाह ने उसे फिर से सेहतयाब कर दिया। तकब्बुर की इंतहा। लेकिन जब इंसान के दिल में तकब्बुर, घमंड भर कर जाता है तो वो नसीहत से नहीं, सजा से समझता है। नमरूद ने सोचा कि शायद ये कोई इत्तेफाक या जादू था। यही उसकी तबाही का मोड़ था। दूसरी बार गुनाह की जुर्रत। वो फिर से हजरत सारा अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ा। इस बार उसके कदमों में पहले जैसा यकीन नहीं था, मगर दिल की गंदगी अब भी जिंदा थी। हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने फिर अपने दिल को अल्लाह की तरफ मोड़ा। उनकी आंखें बंद थीं और लबों पर ये पाक दुआ थी, आए मेरे रब, अगर मैं तेरी राह पर सच्ची हूँ और अगर मैंने अपने दामन को पाक रखा है तो इस जालिम से मेरी हिफाजत फरमा। अल्लाह का अजाब और भी सख्त। जैसे ही नमरूद ने दूसरी बार हाथ बढ़ाया, अल्लाह की कुदरत हरकत में आई। इस बार सिर्फ हाथ नहीं, उसका पूरा जिस्म जकड़ गया। उसकी गर्दन टेढ़ी हो गई, सांसें उखड़ने लगी और वो ऐसे जाम हो गया जैसे कोई बेजान बुत हो। न वो खड़ा हो पा रहा था, न बैठ पा रहा था। घमंड चकनाचूर। अब नमरूद के चेहरे से घमंड गायब था और आंखों में मौत का खौफ। वो कांपती आवाज में बोला, तुम कोई आम औरत नहीं हो, तुम्हारे साथ कोई गैबी ताकत है, तुम्हारा रब तुम्हारी हिफाजत कर रहा है। उसकी आवाज में अब हुक्म नहीं, सिर्फ इल्तिजा थी। वो अपने किए पर पछताते हुए माफी मांगने लगा। रहम मोमिन का जेवर। हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने उसकी जिल्लत देखी तो उनके दिल में नफरत के बजाय रहम आया। उन्होंने फिर दुआ की,
اے اللہ، اگر یہ سچے دل سے معافی مانگ رہا ہے تو اسے آزاد کر دے۔ اللہ نے دعا قبول کی اور نمرود کا جسم پھر سے ٹھیک ہو گیا۔ وہ زمین پر گر پڑا جیسے اسے نئی زندگی ملی ہو۔ رخصتی اور تحفہ۔ اب نمرود پوری طرح خوفزدہ تھا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، انہیں نہایت عزت کے ساتھ یہاں سے رخصت کرو۔ ڈر اور احسان کے بدلے اس نے ایک معزز خاتون حضرت حاضرہ رضی کو ان کی خدمت میں پیش کیا، جو بعد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ اور ایک عظیم تاریخ کا حصہ بنی۔ روحانی سبق۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ مہلت دیتا ہے، لیکن جب انسان حد پار کر دے تو اس کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ پاکیزگی کی حفاظت۔ جو اپنا دامن پاک رکھتے ہیں، عرش والا ان کا نگہبان بن جاتا ہے۔ اللہ پر توکل۔ مصیبت چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اگر اللہ پر یقین مضبوط ہے تو جیت مومن کی ہی ہوتی ہے۔ آخری پیغام، جس کا رکھوالا اللہ ہو، پوری دنیا مل کر بھی اس کا بال بانکا نہیں کر سکتی۔